we are talking about first derivation of equation. Is there any confusion in this derivation? इसमें आपको कोई No. confusion है? Clear है यहाँ तक आपको? Yes. सभी स्टूडेंट्स को, हुमा, समीरा, आयशा, हेलो स्टूडेंट्स, अलिश्मा, हुमा, समीरा, बेटा सबको क्लियर है? ये दोबारा रिपीट करूं मैं ये वाला टॉपिक? जिससे एक बार दोबारा रिपीट कर दें। अच्छा, आई एम सेइंग दैट हम जब व्हेन सपोज अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई, ओके, body start from velocity, its initial velocity is starting point is initial starting speed is initial velocity, okay, and after time t, or you can say after taking distance, it takes time. After time t, its velocity become final velocity, okay. Remember one thing, Yes. remember things: initial velocity, final velocity, and time t. And change in velocity of body, f minus vi, okay, and time divided by time t. Simple, vf minus vi, divide it by time t, तो ये it becomes a formula of acceleration. सिंपल है ये, यहाँ पर ये acceleration का फॉर्मूला बन जाएगा. एंड t here multiplying position, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आकर क्या हो गया, सॉरी ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा, multiply. Multiply. So it becomes at is equal to vf minus vi. माइनस इधर है और उधर आकर ये क्या हो जाएगा, प्लस. सो वी आई ए टी प्लस वी आई, और वी आई प्लस ए टी इज इक्वल टू वी एफ. ये हमारी फर्स्ट डेरिवेशन है. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? No. बाकी स्टूडेंट्स को ओके, यस मैम। ठीक है. अच्छा, यहाँ पर मैं समझ नहीं आया। दोबारा बताऊं? ओके, मैं इसको लिख के बताती हूँ. रिटन फॉर्म. While होया नहीं थे. Let's suppose we have initial Okay. velocity, we represent it by e, and then we have final velocity, हो रहा है. this is vf, and after time and time, these are three terms or three quantities, right? अब Yes. यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, चेंज हमें निकालना है, और वी से दैट डेल्टा v is equal to vf माइनस वी आई, ओके. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय इस पूरी टर्म को, इसे हम किससे डिवाइड कर देंगे, टाइम से, ओके. Time से. यस, इज इक्वल टू वी हैव वी एफ माइनस वी आई divided by time. So according to the definition of acceleration, it is the formula of acceleration. ये acceleration का क्या है, formula है. Formula. Rate of change of velocity, this is rate of change of velocity, and then it's a vf minus vi and divided by टाइम. अब यहाँ पर मैंने ये कहा कि ये t इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, ओके. सो इट रिलेशन बिकम ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई. और हमें जो प्रूव करना है वो सिंपल ये है कि यहाँ पर ये अब ए टी के साथ यहाँ पर वी आई अटैच्ड विद अ प्लस साइन, यही हमें प्रूव करना था, ओके. वी आई इज इक्वल टू वी एफ. ये हमारी डेरिवेशन थी, प्रूफ हो गई, ओके.
अब कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स? नो ओके, मिस। ठीक है, ये इस तरह आपने करनी है। क्लियर? अच्छा, उससे पहले यहाँ पर एक और टॉपिक है। वी हैव द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर quantities and vector quantities. Okay, the physical quantities which are completely specified by their magnitude are called scalar quantities. Magnitude, you can say that it's a area. Okay, area or the body covered the space, जो जगह घेरने वाली सलाहियत होती है, दैट यू कॉल्ड एरिया मैग्नीट्यूड। द बॉडी, अच्छा ये जो है सिर्फ ये द बॉडी फिजिकल क्वांटिटीज विच completely defined by only its magnitude, this is scalar. When the quantities which completely is specified by their magnitude and direction, when the direction and involved with the magnitude, then the quantities become vector quantities. Okay, scalar can be added and subtracted, multiplied by simple method, just like 1 plus 2 plus 3, and these are subtracted and multiplied by geometric and trigonometric method. This point number 2 we will study in detail in chapter number 5. Okay, scalar can be represented by 50 seconds और सिंपल, वाइल ऑन एरो, जैसे कि हमने एरो वाला शो ऊपर मैंने कहा था ना कि वी के ऊपर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर एरो बना हुआ था, तो वो एरो से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, जब भी आप वेन एवर यू सी द एरो ऑन द टॉप ऑफ एनी क्वांटिटी, यू अंडरस्टैंड दैट इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। मास, वॉल्यूम, टाइम, डिस्टेंस इज द डायरेक्शन, द स्केलर क्वांटिटी मीन्स मास, वजन, mass have no direction. Okay, volume, time, distance, these are free from directions, while area, displacement, area means कितना फैला हुआ है, कौन सी तरफ उसका डायरेक्शन है, displacement, velocity, acceleration, force, momentum, etc. are the examples of vectors. Got it class? यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? Yes. Yes. Second equation we have derived the second equation of motion. First equation ये है, please remember the formula. In next class we will solve with the help of we will solve the numerical with the help of this formula. Second equation का जो formula है वो हमारे पास ये होता है, s is equal to v I and then t plus half, it's a formula of second equation of motion, and we studied it first equation of motion. S is equal to vit plus half at square. This is second equation. Okay, and then suppose body starts, okay, you can use your own wordings. इसमें हम अपनी own wording में भी लिख सकते हैं, ये जो wording आप देख रहे हैं ना इस पेज पर. Suppose a body start with an initial velocity vi and travel with uniform acceleration a for a time t. The distance covered by a body in this time is s and its final velocity become vf. Students, you can see there are 4 to 5 quantities are involved. Initial velocity change, then acceleration produce. Please listen to me carefully. Initial velocity, our body starts from its distance displacement from initial velocity change, acceleration produce, time covers, and distance time after time t, distance covered and velocity become final. Initial velocity, acceleration, time, distance and final velocity. Right students? यहाँ तक clear है सबको? Yes. Okay. Next ये wording थी इसकी यहाँ पर. On the next time, okay. Since the acceleration is uniform, the velocity of the body increase or decrease by equal interval of time. Here we involve the average velocity vf plus vi divided by 2. vf plus vi, यहाँ पे दो velocities के फॉर्मूले इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक तो एवरेज velocity और दूसरा यहाँ पर मैं आपको ये डिराइव करके दिखाती हूँ क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. मेन फॉर्मूला वी हैव s इज इक्वल टू vt.
S is equal to, this is the main formula of this derivation, equation number 1. Okay, so here वेलोसिटी जो है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है, एवरेज वेलोसिटी में, यानी कि हम v की जगह पर क्या लिखेंगे, वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम, इसमें हमने ये पुट कर दिया है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? कोई क्वेश्चन जो आपने पूछना है यहाँ पर मुझे बताइए। वाई द वेलोसिटी ब्रेक इन 2 पार्ट्स, ये 2 पार्ट्स में क्यों ब्रेक हुई है? या तो सब कुछ समझ आ रहा है, आइदर यू आर गेटिंग एवरीथिंग और यू आर गेटिंग नथिंग। इंसान 2 सूत्रों में चुप रहता है, या तो उसे सब कुछ आ रहा होता है समझ, या कुछ भी नहीं आ रहा होता। अब मुझे बताइए, अगर इफ यू आर गेटिंग एनीथिंग एवरीथिंग, सो टेल मी व्हाई वी डिस्ट्रीब्यूटेड द एवरेज वेलोसिटी इन 2 पार्ट्स। ये 2 पार्ट्स में क्यों डिस्ट्रीब्यूट हुई है? आंसर क्लास, नो आंसर। मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही। मुझे पता है, मैंने अभी चेक किया है। जी बेटा, अब बताइए कि वो 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट क्यों हुआ था? ये वाला S इज इक्वल टू वी टी था, क्योंकि यहाँ पर v जो है 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट इसलिए हुआ है बिकॉज वेलोसिटी कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। जब एक चीज़ 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है तो फिर हम उसको एवरेज में निकालते हैं। वी एफ इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाई 2। ओके, एंड अब यहाँ पर देखिए प्लीज़, यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन का रेफरेंस दे रहे हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन अभी पढ़ी थी यहाँ पर स्टूडेंट्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? S इज इक्वल टू, ये फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी, ये हमारे पास सेकंड, ये अभी हमने यहाँ पर फॉर्मूला इधर बना है। नाउ अब हम क्या करेंगे, ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन थी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इंस्टेड ऑफ वी एफ, इसमें हम वी एफ की जगह पर ये चीज़ पुट करेंगे, वी आई प्लस ए टी। ये रहा, समझ आ रही है स्टूडेंट्स? वी आई प्लस ए टी, इसकी जगह पे हमने पुट किया बिकॉज वी डिराइव्ड इट इन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये कितने बन गए, वी आई प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2, इट्स बिकम 1 प्लस 1। ये कितने बन गए, 2 वी आई प्लस ए टी मल्टीप्लाई टी, वी राइट इट एज इट इज। अब ये एलसीएम ब्रेक कर दिया, हाउ वी आर, टी इधर अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई हो गया, 2 वी आई टी इज 2 वी आई टी प्लस ए टी टी इज ए टी स्क्वायर। और एलसीएम ब्रेक करने का मतलब होता है 2 इसके नीचे भी डिवाइड हो जाएगा और 2 यहाँ पर भी डिवाइड हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 कैंसिल नहीं हो सकता बिकॉज ऑन द न्यूमरेटर वी डोंट हैव 2। आपका आंसर आया वी आई टी प्लस हेयर वी हैव 1 अपॉन 2 ए टी स्क्वायर। दिस इज आवर फाइनल डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ तक देखिए क्वेश्चन है तो मुझे बताइए प्लीज, एनी क्वेश्चन? 9 बजे दी इसकी क्लास। अच्छा, अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ ताकि आपके क्लियर हो जाएं कॉन्सेप्ट्स। पीछे हो जा, S ये देख इक्वल टू वी टी। मुझे ओके, डिजाइन velocity have 2 parts, केमिकल बनने के बाद initial velocity and final velocity. Here we are taking the average velocity. Okay, average means adding both parts, vi plus vf ये देख divided by 2 and the whole term ये हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में, और यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। सिंपल, आई एम टेलिंग यू एज, अब यहाँ पे हमने रेफरेंस दिया है ये वाला फर्स्ट इक्वेशन। ओके, वी ये देखिए, इसकी जगह पर हम वी एफ की जगह पर वी आई प्लस ए टी लिखेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन से हमने फॉर्मूला जनरेट किया था। वी आई वी राइट इट एज इट इज,
और वी आई की जगह पर हमें फॉर्मूला मिला है वी आई प्लस ए टी. I am saying again and again, it's a formula of first equation of motion divided by 2 and multiplied by time t. As you can see, t is repeated just as it is, okay? 1 vi and 1 vi become 2 vi. 2 vi divided by 2. You can note it down also, and it's a LCM break. ये हम LCM भी break करते जा रहे हैं. LCM break mean distribute, decompose, distribute the denominator into two parts. It's और ये multiply by t as it is आ रहा है यहाँ पर, और 2 cancel, 2 here, 2 cancel, 2 here, and then s is equal to vi. यहाँ पे ये कैंसिल हो गया. वी हैव वी आई टीजा हेयर. अब ये ब्रैकेट खुलेगा. अब ये टी इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये टी इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है. वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यहाँ पर हाफ ए टी बिकॉज टी टीजा टी स्क्वायर. Is there any confusion, students? Students, is there any confusion? This is the last topic of our class, today's class. अगर कोई सवाल है तो प्लीज कर लीजिए, वरना फिर हम एंड करते हैं. No question? Okay. In next class, we will study the third equation of motion, and we will solve our numericals. Okay, we will start our numericals inshallah. Okay. कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप लोगों का? ठीक है.